Very warm welcome to everyone and welcome and thank you so much for joining this session. हम लोग हमेशा अपने सेशंस को टाइमली स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं. कभी-कभी 1-2 मिनट इधर-उधर हो जाता है बट वी विल ट्राई. मेरा नाम डॉक्टर मालविका जैन है. आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ मनका अकेडमी दिल्ली. तो आज का सेशन इवन आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस. आज का सेशन आप लोग 1 घंटा तो कम से कम मेरे साथ हैं. बाकी क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ आई डोंट नो आप लोग कितनी देर रुकना चाहेंगे. लेट्स स्टार्ट. आई जस्ट वांट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. जिन्होंने पहली बार हैंड राइटिंग के बारे में सुना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट. और ओके आपने बता दिया नंदिता जी, आपने बताया. नेहा ने भी बताया. सविता, ओके सविता यू कॉल. ओके I'm sorry. Shavita, okay. If I'm pronouncing it wrong, so please excuse me. All right. Fine, let's begin. So as we all are aware, today's topic is all about, with the help of handwriting, we are going to know about ourselves, right? Oneself, apne aap ko janna. Why it is important, and anyone just want to give me little bit about handwriting thing. जो जानते हैं वो रहने दे, जो नहीं जानते, जो ट्राई करना चाहते हैं ट्राई वो बता सकते हैं. iPhone 12, आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट गेटिंग योर iPhone 12 ओनली, तो आई वांट टू एक्नॉलेज यू विद दिस इटसेल्फ. जी कोई ट्राई करना चाहेंगे? एनीवन? ओके यस, iPhone 12. Just a second, ma'am. I'm just adding my name. All right, it's okay, it's okay. Anyone? Yeah. Yes, please. Ma'am, I guess the way we represent ourselves in, day-to-day life, like too hectic people, like we write it too fast. We don't have time. Something like that. And the person who writes very clear and slowly has a lot of patience to listen, to talk, to write. I'm just guessing it. I don't know whether. No problem. I just have a feeling like doctors are the most busiest people. So they just slang their writing. Sometimes we don't even understand their medicine. But why these, chemists, they understand doctor's language? How they are able to? Because they have studied. They have studied a lot. About medicines. That's fine. That's a total different aspect. We'll talk about that in detail. But apart from that, anyone else? Yes, यहाँ पे शालिनी गुप्ता नहीं, सविता जी ने पहले hand raise किया था, so I just want to hear from her. You already mentioned the same thing. Okay, she did. Yeah. कोई नहीं, it's okay. हाँ जी, अंशु जी ये अपना hand. अच्छा हटा रही हूँ. I'm just removing it. It's okay, lower. Anyone else who would like to try? The signatures give out the traits of a person if analyzed well. That is one. Second, you can make out a lot of things, lot of the qualities of a person by analyzing the signatures. Also, this is used in criminology for reading, catching people who make fake letters and fake things and all that, and they are authorized by the court to do so. Absolutely. Even I have done that course. I am also a forensic handwriting and signature. That you need to have done criminology or psychology or something. No. Yes, not anything about the psychology part. It's all about handwriting and signature, but that too depending on this big laboratory, because there are so many tools required to assess the forgery of that, the signatures. चलिए, apart from that, बाकी I think सब लोगों का हो गया. Anyone else? कोई और लास्ट ट्राई करना चाहेंगे? Anyone else? डिस्कशन कर रहे हैं, कोई क्लास नहीं है. प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस. और पर्दे के पीछे रहने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू आर कंफर्टेबल आप स्क्रीन पर आ सकते हैं. अभी वो टाइम चला गया आशा पारेख वाला, कोई नहीं रहता पर्दे के पीछे. Anandita here.
just Yes. had a thought. Probably it could even be to understand one's personality, and if there are any shortcomings, we can even correct them also to better ourselves. Absolutely correct. Absolutely. You all would be surprised to know this कि जो भी आप लोगों ने बताया ना मेजरली एकदम करेक्ट है. कुछ लंबा चौड़ा साइंस नहीं है, बहुत कुछ इसके अंदर पीछे नहीं है. इट इज जस्ट हैंड राइटिंग. किस लिए? एक सिंपल चीज है जानने के लिए कि हैंड राइटिंग ब्रेन राइटिंग है, और वो कैसे ब्रेन राइटिंग बनी इसके बारे में हम डिटेल में क्लास के अंदर ही जानेंगे इसको. ठीक है, क्विकली विल स्टार्ट. हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं. इफ यू हैव पेन एंड पेपर हैंडी तो आप रख लीजिएगा. इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग ले सकते हैं. जहां जहां पे भी जो स्लाइड्स आपको लगेगी इंपॉर्टेंट आप ले सकते हैं. कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर एंड जो स्लाइड्स के अंदर नहीं होगी, मे बी यू कैन टेक द नोट्स ऑफ दैट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इफ फर्स्ट टाइम यू आर जस्ट लर्निंग इट एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, तो वो आप अपनी हैंड राइटिंग में चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम सब लोग अपने आप को जानने के लिए आए हैं. आप लोग म्यूट रखेंगे अपने आप को तो अच्छा रहेगा. Malvika ji, there's one question. Yes, There are situations where we have multiple handwritings. Each person has got multiple handwritings. I have that. So which handwriting is it that we have to analyze? I request you to just keep little patience. I'll just Acha. consider this question. I have made this list of this question, which is very common question, but yes, people are confused about this. I'm going to tell this. Sure. Thank you. Okay, don't worry. I'll answer all the questions. आज हम लोग यहाँ पर नहीं हिलने वाले, चाहे 9 बज जाए, but I'm going to answer all the questions. आज के हम लोग टॉपिक्स कौन से कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो उसके बारे में भी जस्ट टेक अ हिंट अबाउट दैट. तो टॉपिक्स में सबसे पहले तो आएगा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. एज आई मेंशन कि बहुत सारे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि कैसे क्या होता है, क्या चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस. तो मोटे मोटे जो उसके ब्रीफ में जो कुछ आंसर कर सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस हम लोग इसको समझेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ कास्टिगेशन. ठीक है, ये एक ट्रेट है हैंडराइटिंग के अंदर, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे. देन वी हैव अनदर ट्रेट. जस्ट अ मोमेंट. ओके, सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, ये भी एक सेल्फ, खुद से रिलेटेड ही सारी चीजें आ रही है. तो खुद से रिलेटेड यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल हम लोग जो करते हैं उसको, उसके कैसे ट्रेट है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें अपनी खुद की राइटिंग में. सेल्फ कॉन्शियसनेस. बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होती रहती है, कॉन्शियस होते रहते हैं. ऐसा लगता है कि 24/7 somebody is watching me. If I'm eating, then also somebody is watching. If I'm laughing, if I'm smiling, if I'm doing anything, I am just under observation. सेल्फ डिसीट. सेल्फ डिसीट होता है ना. सेल्फ डिसीट मतलब सामने कुछ है लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं पाते या फिर उसको क्लियर पिक्चर उसका नहीं देख पाते. तो कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स होते हैं इसको हम सब यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले तो अपने आप को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, बट इन एक्चुअल हम में से बहुत सारे ऐसे लोग आज ही आप लोगों के बीच में से होंगे शायद, वो फिर भी कहेंगे कि यस आई डू नॉट नो माई सेल्फ कम्प्लीटली. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे ना अपने हस्बैंड वाइफ के जब झगड़े होते हैं, तुम मेरे साथ इतने सालों से हो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं पहचाने. ऐसा होता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमें पहचान जाएंगे, बट इन एक्चुअल हम खुद को नहीं जानते. इसकी वजह से वी एक्सपेक्ट कि दूसरे हमें जाने और वो हमारी चीजों को पूरा करें. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू नो. एंड इसी सीरीज में आगे जाते हुए कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट अपने आप को जानना दूसरों से पहले. और ये टॉपिक सिलेक्टेड क्यों लिया, इस टाइम पर ही क्यों लिया? ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा था तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट फ्री ग्राफोलॉजी का कोर्स तो करना है, एक वीडियो एक करना तो है, बट क्या टॉपिक लिया जाए, क्या टॉपिक लिया जाए. सो आई जस्ट इट जस्ट केम लाइक दैट कि वैलेंटाइंस पे हम एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, पार्टनर्स एक दूसरे को गिफ्ट्स देने में लगे रहते हैं, बट एक गिफ्ट आप अपने आप को क्या दे सकते हैं, है ना? अपने आप के लिए कौन सा बेस्ट गिफ्ट हो सकता है? अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अपने आप की पहचान खुद से करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो हम फायदे गिन लेते हैं, क्योंकि जहां तक पर फायदे की बात नहीं है तो वो बेकार की चीज है. फायदा होना चाहिए, चाहे अपना फायदा हो चाहे कुछ भी फायदा हो, फायदा होना चाहिए. तो सबसे पहले तो ये जैसे हम हैं हमें खुद को
एक्सेप्टेंस, हमारी खुद के लिए एक्सेप्टेंस आ जाती है, ठीक है। दिस हेल्प्स अस, क्योंकि यहाँ पे जो हैंडराइटिंग के कुछ ट्रेट्स बताने वाले हैं, तो उससे आप अपने आप को बेटर जान पाएंगे। हम हमेशा पूछते रहते हैं ना, वाई क्वेश्चन माइंड में घूमता रहता है, वाई इट इज सो, वाई इट इज हैपनिंग विद मी, वाई इट इज दिस सिचुएशन इज विद मी। तो हेलो दलजीत जी, ऑलराइट, सो ये वाली हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक्नॉलेजिंग योर ट्रू सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू नो योर वर्थ। अब कई लोगों की ये होता है ना कि तुम्हारी कीमत क्या है, अपनी कीमत खुद पहचानो। कीमत कैसे लगाई जा सकती? क्या आपकी कीमत लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती, किसी भी कीमत पे नहीं लगाई जा सकती। आप में से कोई ऐसा है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है? एनीवन? एनीवन? किसी की कीमत लगाई जा सकती है? कोई भी आंसर कीजिए ना। नहीं लगाई जा सकती, नहीं No, लगाई जा सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्योंकि हम लोग यूनिक हैं, हम लोग अनमोल हैं, भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है। अगर हम भगवान की बात भी ना करें, कुछ लोग अगर नहीं मानते होंगे, भगवान को भी अगर नहीं मानते हैं, तो डिवाइन सुप्रीम पावर या वो कोई ऐसी अथॉरिटी जिसने हमें बनाया है, इस लाइफ में हमें भेजा है, सो दैट सम डिवाइन पावर वो जानती है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता है, बिकॉज वी आर द यूनिक क्रिएशन, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, राइट? वी आर द बेस्ट क्रिएशन। इसके लिए एक्नॉलेजिंग आवर ट्रू वैल्यू। हमारे जो खुद के लिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, मैं ऐसा कर रही हूँ, मेरे डिसीजंस ठीक होंगे कि नहीं होंगे, सेल्फ डाउट वाली जो सिचुएशन होती है ना, डुअल माइंडेडनेस, कई बार सेल्फ डाउट हो जाते हैं, डाउट्स, ये किया तो सही किया कि नहीं किया। इनफैक्ट एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल भी ये लेते हैं कि आपने दाल में नमक डाल दिया और उसके बावजूद कह रहे सही है कि नहीं है, ये कॉमन एग्जाम्पल है ना। तो ये एक सेल्फ डाउट है कि अपनी कैपेबिलिटीज, रोज वही काम कर रहे हो लेकिन फिर भी we are not sure whether we are doing it correct or not doing it correctly. अपने आप को जानकर हो क्या सकता है? आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसी और का फायदा तो इसमें है ही नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ग्रो करेंगे। आप प्लीज म्यूट कर लें, किसी का यहाँ पर अनम्यूट है, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। प्लीज सब लोग अनम्यूट, हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, किसी और का फायदा नहीं है यहाँ पर, किसी और के फायदे की तो बात हो ही नहीं रही। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वैल्यू। हम ग्रो कैसे होते हैं? हम कोई ककड़ी मूली गाजर नहीं है जो अर्थ के साथ कनेक्ट होकर हमारी जड़ें हैं जो लगेंगे और हम ग्रो हो जाएंगे। हम ग्रो होते हैं एक्सपीरियंसेस से। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है टू नो योरसेल्फ बेटर। मेकिंग द राइट चॉइसेस, अपने खुद की चॉइसेस आप जो सेलेक्ट करते हैं, जो डाउट वाली सिचुएशन आ रही है ना, डाउट नहीं रहेगा, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं अब किसी की भी नहीं सुनता। ये जो डायलॉग्स बने ना, ये ऐसे वैसे डायलॉग्स नहीं बने, ये डायलॉग्स वाकई में रियलिटी से रिलेट करते हैं, क्योंकि इन एक्चुअल ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ कह दिया तो दैट मीन्स इट हैज सम वैल्यू, एंड व्हेन यू आर सेइंग समथिंग इट शुड गेट दैट वैल्यू, कि कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। आपको खुद को पता है कि मेरा जो डिसीजन है, चाहे मैंने हेस्टी डिसीजन लिया हो, बट स्टिल इट इज अ फाइन डिसीजन, ये सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट काइंड ऑफ चॉइस, दैट काइंड ऑफ इजीनेस आपके सिलेक्शन में होनी चाहिए। सो दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू लर्न बाय नोइंग योरसेल्फ एंड लर्निंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब कॉन्फिडेंस भी आ गया, आपको ये भी पता है कि डिसीजंस भी जो आप ले रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्या आएगा इससे? आप एक्सप्रेस, जो सेल्फ एक्सप्रेशन आ रहा है ना, कुछ भी बेबाक होना, किसी भी चीज के बारे में कहीं कभी बोल देना। तो बहुत सारे ऐसे सेलेब्स को भी आपने देखा होगा कि जो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। व्हाई इज दैट सो? क्यों उनको एक कॉन्शियसनेस नहीं आ रही होती? क्यों कॉन्शियसनेस नहीं आ रही है? क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड दिस इज द साइकिल, दे हैव अंडरस्टूड इट, कि अपने आप को जान लिया तो फिर उसके बाद किसी और को जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइन। एंड अपने आप को जाना तो उसके बाद दूसरों को जानना बहुत ही इजी हो जाता है। खुद को जानो, भगवान है क्या? भगवान को हम जो बोलते हैं वो है क्या? वी ऑल आर कनेक्टेड बीइंग्स, हम भगवान का ही अंश है, हर किसी के अंदर वही अंश है। अगर हमने अपने आप को अच्छी तरीके से जान लिया तो देयर इज नो डिफिकल्टी, बिकॉज वी नो देयर इज अ पैसेज, एंड विद दैट पैसेज इज क्लियर, दैट सिग्नल इज क्लियर टू अस। दैट सिग्नल इफ इट इज क्लियर, हमें खुद को जानने वाला जो सिग्नल अगर क्लियर है तो दूसरों को जानने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। हमारा नेटवर्क क्लियर है ना, तो हम किसी के भी नेटवर्क में जा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। नेटवर्क क्लियर है, पैसेज क्लियर है, रास्ता क्लियर है। मैंने जो रास्ता बनाया, दैट पाथ इज क्लियर। सो
यहाँ पर ये 7 पॉइंट है. देन उसके बाद आता है 8 पॉइंट. दिस हेल्प्स अस टू ओवरकम आवर फियर्स, एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ आप अंधेरे का डर बोल लो, या आप अकेलेपन का डर बोल लो, या किसी भी चीज का डर बोल लो. कोई भी डर अगर आपकी लाइफ में है, अननोन फियर्स, हमें पता भी नहीं होता, बट वी आर डीलिंग विद सो मेनी फियर्स. और आज का मेरा पोस्ट भी एक इसी से रिलेटेड था, अननोन फियर के ऊपर ही. किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था वो वाला? एनीवन? आज का जो मेरा एक पोस्ट था, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया? चलिए. This helps us to figure out that what we want to do in our dear life. अपनी खुद की इतनी प्यारी जिंदगी के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, आपका जो मेन मिशन है, आप किसी मिशन पे निकले हुए हो. जब आप पैदा हुए थे ना, तो इट वाज ऑलरेडी डिफाइंड. हमें सब पता था उस वक्त, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ना एकदम क्लियर था. वी हैड ऑल द क्लियर सिग्नल्स. पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, हमारे वो सिग्नल्स मिसप्लेस हो गए, वो सिग्नल्स इधर उधर हो गए. और वो सिग्नल डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से, क्योंकि अब आप देखो कि कितना ट्रैफिक जैम हो गया ना, तो आकाश में भी ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो उस जैम की वजह से हम यहाँ पे फंस गए और हमारे वो सिग्नल हम रिसीव नहीं कर पा रहे. वो सिग्नल कैसे सिग्नल्स हम नहीं रिसीव कर पा रहे, आप समझ रहे हैं? किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो अपने क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा. आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. बीच में कोई भी क्वेश्चन का आपका, अगर आपको कुछ भी हो, अगर आपको लगे कि चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, मे बी आई कैन जस्ट टेक इट लेटर. फाइन. थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं मनका अकेडमी के बारे में. आई हैव गिवन मनका अकेडमी बेसिकली फाउंडेड, आई फाउंडेड दैट इन 2020. बट यस, इससे पहले मनका अकेडमी, इससे पहले हमारा मनका द सोलफुल जर्नी था, दैट वाज बैक इन 2019. एंड ये एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया है वेर इन वी आर टीचिंग ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी. एंड इससे रिलेटेड हमारी कुछ पेड वर्कशॉप्स भी होती हैं, फ्री वर्कशॉप्स भी होती है. टाइम टू टाइम वी जस्ट कंडक्ट ऑल दीज वर्कशॉप्स. और इन्हीं से रिलेटेड, ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हमारे निकल के आए, विच आर द कनेक्टेड साइंसेस. तो वो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं. तो वॉच एनालिसिस हो गया, लोगो एनालिसिस है, नेम की वाइब्रेशन से रिलेटेड, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन, नेम का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उससे रिलेटेड, दैट सिंबल का जो साइंस रहता है, सिंबल्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो उन सिंबल्स का क्या मीनिंग रहता है. विजन बोर्ड का वर्कशॉप है, विच इज वेरी डियर टू मी. एंड ये इस विजन बोर्ड की वर्कशॉप ने मेरी लाइफ बहुत सारी चेंज करी. और ऑफ कोर्स ये जो ग्राफोलॉजी भी आया, तो शायद इसी विजन बोर्ड की वर्कशॉप की वजह से आई अट्रैक्टेड दैट. And drawing and doodle analysis, of course, it is also a sort of handwriting analysis से related है. but यहाँ पर हम लोग drawing, जो हम लोग हाथ से drawing करते हैं ना, जैसे बच्चे बनाते हैं पहाड़, sun, moon, all those things, river, ये सारी चीज उसी से related है. तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है कि मनका अकेडमी के अंदर हम ये सारी चीजें सिखाते हैं. And I learned graphology back in it's been more than 7 years now. एंड ग्राफोलॉजी सीखने के बाद आई चेंज्ड माई सेल्फ, बिकॉज मेरी राइटिंग के अंदर भी कुछ ऐसे ट्रेट्स थे जिनको चेंज करना बहुत जरूरी था. व्हेन आई लर्न दैट कि ये ऐसे ट्रेट्स हैं, कुछ डेडली ट्रेट्स हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया. सो दिस इज समथिंग आई हैव लर्न. एंड उसके बाद ये मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि आई एम गोइंग टू टेक दिस एज अ प्रोफेशन. I was working in MNC. I was working with one non-profit organization. I worked with a lot of companies, but non-profit organization के साथ approximately 6.5 years as a general manager I worked, and then I quit my job because I found that this has a lot of potential and I need to connect with people. That's the reason I just left the job and I have started my own academy. But yes, COVID एक बहुत अच्छा टाइम रहा, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से, हजारों लोगों से वर्ल्ड वाइड कनेक्ट किया. और उस टाइम लोग कहते थे कि वो फोटोज डाल रहे हैं और कुकिंग कर रहे हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड बस इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग टॉपिक से कनेक्ट करते हैं. जैसा कि आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू. तो कुछ लोगों के माइंड में डेफिनेटली होगा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर भी किया. व्हाट इज हैंडराइटिंग एनालिसिस? हैंडराइटिंग है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा. जब एक बच्चा पैदा होता है, देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक रिसर्च है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, अगर उसको 30 दिन तक, 30 days, इफ यू डू नॉट टच दैट चाइल्ड, वो चाइल्ड कैन डाई. क्यों ऐसा होता क्यों है?
क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा खाली एक ही सेंस काम कर रहा होता है, दैट सेंस ऑफ टच। जब माँ बच्चे को सहलाती है, जब माँ बच्चे को टच करती है, उसी सेंस की वजह से उसके और सिनॉप्सिस, वो जो ब्रेन के अंदर नर्व्स होती है ना, जो हमारे न्यूरॉन्स, जो हम बोलते हैं कि जो पूरे सिग्नल का जो सिस्टम है, आप ऐसा समझो कि बॉडी के अंदर जो सिग्नल जा रहे हैं हर ऑर्गन के साथ कनेक्ट करने वाला, पैर में पेन हो रहा है कैसे उसको बताना है, तो वो सारी चीजें हमारे उस ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो जब वो टच का सेंसेशन जितना स्ट्रांग होता जाता है, हमारे वो अदर 5 सेंसेस डेवलप होते जाते हैं। गॉट इट? तो जो हमारे अदर 5 सेंसेस क्रिएट होते जाते हैं और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, हम और ग्रो करते जाते हैं। इस ड्यूरेशन में हमारे अब अदर 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? एक बार आप में से कोई हैंड रेस करके बताना चाहेंगे हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? सीइंग, यस यस। शालिनी जी बताइए। स्मेल, टच, यस, टच हो गया। नेक्स्ट, स्मेल, दैट स्मेल, यस यस। Listening, ears, eyes, सीइंग, यस। ears, listening, ईयर, लिसनिंग, मैम, टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, 5 हो गए, कोई छूटा तो नहीं? ठीक है, ये सारे सेंसेस हो गए। देखना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट को फील करना, और कौन सा रह गया? बोलना, बोलना, स्पीकिंग। ठीक है, हियरिंग, हियरिंग, hearing. हियरिंग। तो ये हमारे 5 सेंसेस हो गए। देखिए 5 सेंसेस का ये कनेक्ट कैसे हुआ? एक सेंस था पहले खाली, टच का सेंस। उस टच के सेंस के साथ कनेक्ट होते होते ये सारे सेंसेस कनेक्ट हो गए। और ये किसकी वजह से हुए? हमारी मदर की वजह से। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तो टाइम हम लोग बचपन में, चाइल्डहुड में मदर के साथ ही स्पेंड करते हैं ना। मदर हो गई या मदर लाइक फिगर हो गई, किसी किसी की मदर नहीं भी हो सकती है, लेकिन मदर लाइक फिगर। स्कूल के अंदर भी हम जाते हैं तो हमारे को फीमेल टीचर्स ही क्यों दी जाती है? क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है प्राइमरी क्लासेस के अंदर? क्यों? क्योंकि वो मदर लाइक फिगर है। मदर का जो टच होता है, जो फीलिंग आती है, जो इमोशंस आते हैं, वो ही हमारे 5 सेंसेस को कनेक्ट करते हैं। और इन सेंसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी पूरी लाइफ की स्टोरी लिखने में। हर एक जीता जागता इंसान अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी है। इस बात को मानते हैं आप लोग? जो लोग मानते हैं यस कर दीजिए चैट बॉक्स में। वाई लिख दीजिए खाली, आई नो। 2 3 4 5 6, ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो लोग मानते हैं इस चीज को कि मदर के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। अब 5 सेंसेस के बीच में अगर जहां पर भी इमोशनल कंडीशनिंग अगर वीक हो गई, हमारी लाइफ, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर पेरेंट्स। हम किसका कॉम्बिनेशन है? मदर एंड फादर का कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स हमारे अंदर भी मेल एंड फीमेल एनर्जी है। जो यिन यांग एनर्जी, जो हम मेल फीमेल, जो आदि शक्ति की हम बात करते हैं, जो हम शिव जी को देखते हैं, तो वो है क्या? वो बेसिकली वो यही एनर्जी है जो हमारे साथ भी कनेक्टेड है, चाहे हम किसी भगवान में माने या नहीं माने, बट स्टिल वी आर द कॉम्बिनेशन। और वो हमारी राइटिंग के अंदर भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो ये 5 सेंसेस है, दैट इज क्रिएटिंग आवर इमोशन बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल कंडीशनिंग। हम किस तरीके से वो चाइल्डहुड तक उसको क्रॉस करके आए, तो वो उसकी वजह से हमारी वो कंडीशनिंग हुई। और उस कंडीशनिंग से हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, देखना, किसी को झटके से देखना, किसी को गुस्से से देखना, किसी को चिल्ला के बोल देना, किसी को खाली आंखों से बोल देना, किसी को किसी का ऑरा फील कर लेना। टच सेंसेशन हम जो बोल रहे हैं ना, वो है क्या? वो सूक्ष्म लेवल पर, वेरी माइन्यूट लेवल पर वो फीलिंग एक होती है। तो जो हम फील कर लेते हैं, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होते हैं हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। कुछ चीजें ऐसी होती होंगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस कंपनी, और आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन देयर हाउस। हम वहां पर जाते हैं ना, तो आई ऑलवेज फील सिक। या हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा, यू फील ड्रेन्ड आफ्टर कमिंग बैक, है ना? घर पे आने के बाद यू फील लाइक एग्जॉस्टेड। या फिर आप बहुत सुंदर से कहीं पर तैयार होके गए और किसी पार्टी में गए हो, और उसके बाद आने के बाद यू फील कि हेडेक हो गया या वॉमिटिंग हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज वी आर सेंसिटिव।
और जो हमारा रिएक्शन होता है टूवर्ड्स दीज कंडीशंस, तो वो हमारी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. दैट इज नॉट बैड एट ऑल, दैट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म. क्योंकि हमें नहीं पता है अननोन रीजंस की वजह से जो हमारी इमोशनल कंडीशनिंग हुई है, उस इमोशनल कंडीशनिंग में वेयर एंड व्हाट जो हमारे वायर्स जो ब्रेन में मैच कर रहे हैं ना, तो उन वायर्स के बीच में क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई है. जो हम लोग आज जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस टॉपिक्स हाउ दे केम. तो यहाँ पे ये हैंड राइटिंग एनालिसिस बेसिकली हमारी ब्रेन राइटिंग होती है, क्योंकि सारा कुछ जो केमिकल है, जो जितनी भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है ना, ये हमारे हैंड के अंदर सबसे ज्यादा जो मोटर मूवमेंट्स जो हमारे होते हैं ना, हाथ के अंदर ही होते हैं. क्यों हम सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या फिर कुकिंग वगैरह का हाथों से हम जो फाइन वर्क कर लेते हैं आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन की वजह से, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द हैंड राइटिंग में भी वही ट्रेट्स आते हैं. जो चीजें आप काम करते हैं आपकी हैंड राइटिंग भी वही बताती है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रोक्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. Subconscious mind is your treasure box. It is a mind, it is a brain which is connected not only with this life, with your previous lives as well. If you believe in previous lives, then only you just go by that. Otherwise, हम DNA system की अगर बात करें, तो subconscious mind is also connected with the DNA. हम बोलते हैं ना कि आपके जीन्स उससे आए हैं, आपका DNA उससे मैच करता है. तो what is this? हमारे ancestors के बारे में भी हम find out कर सकते हैं with your own DNA. हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो स्टडी है, दिस कंप्लीट स्टडी, दिस टेल्स अस दैट हमारी जो नर्चरिंग हुई है, हमारे पेरेंट्स वो अपने अपने पेरेंट्स से आए. उनके पेरेंट्स की नर्चरिंग कैसे हुई थी, वो भी उनके डीएनए के अंदर था, जो हमें पास ऑन हुआ है. और वो लेगेसी वी आर मेंटेनिंग. इफ वी वर्क ऑन आवरसेल्फ, वी कैन इम्प्रूव not only our life, but we can also pass on the same better life to our future generations. This can be done. Handwriting analysis is the study of your brain graphs, जो कि आप हैंडराइटिंग के माध्यम से पेपर के ऊपर लिखते हो. आप पेपर के ऊपर चाहे एक डॉट भी बनाओगे, देन ऑल्सो दिस कैन बी एनालाइज. किसी भी तरीके से उसका एनालिसिस हो सकता है. आपने किस भी डायरेक्शन में बनाया है, सो दिस कैन बी चेक्ड. फाइन. रिवील क्या करता है ये? सबसे पहले ठीक है, स्टडी हो गई. रिवील क्या करता है? अब रिवील ये करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है. सिंपल. आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत सारे हो सकते हैं. हो सकता है आपके अंदर इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर फोकस हो, डिटर्मिनेशन हो, परसिस्टेंस हो, आपके अंदर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म हो, आपके अंदर लाइन टेंडेंसी हो. सो मेनी थिंग्स. हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. बट अल्टीमेटली अगर हम इसको कैटेगराइज करें, तो ये है क्या? जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो नेगेटिव है वो आपकी वीकनेसेस है. वीकनेस होती क्यों है? वीकनेस इज नॉट समथिंग दैट वी आर वीक. वीकनेस इज जस्ट बिकॉज इट इज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म. दैट्स इट. हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है. वी जस्ट हैव सर्टेन थिंग्स. हमारा जिस माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया किसी भी इमोशनल कंडीशनिंग के अगेंस्ट में, तो वो हमारे मैकेनिज्म आ गए. तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे. तो उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम वीकनेसेस के रूप में बोलते हैं. कई बार वो डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ के अंदर भी आ सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे वीकनेसेस की वजह से ही आएंगे. नो, वो कई बार हमारे पॉजिटिव स्ट्रेंथ की वजह से भी आते हैं. एक्यूरेसी कितनी है? इसके अंदर 100% एक्यूरेसी है. 100% accuracy है. It is a certified. I am a certified graphologist from USA, and even I have learned from many institutions in India. I have started my journey with Indian graphologist only, but after learning this graphologist, I learned their master, then master's master, then master's master. Then I have reached to the final destination, and it's a long seven years journey. And it's 7 year के अंदर I have learned and spent a lot to enhance myself, because मेरी ये जो खोज थी वो यही थी कि सेल्फ खुद से खुद की पहचान कैसे करनी है, हाउ टू फाइंड माय रियल सेल्फ. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, बट जो जॉब के साथ चल रहा था वो लगता था कि यार दिस इज नॉट मी, आई डू नॉट वांट टू वर्क लाइक दिस. तो ये हैंडराइटिंग एनालिसिस एक्यूरेट है. और अगर आप इसको आई कॉल इट डायरेक्ट मेडिसिन. इफ यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम विद योर हैंडराइटिंग, दैट दिस कैन बी करेक्टेड टू. कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सोल्यूशन भी आता है. एंड एवरी प्रॉब्लम कम्स विद द सॉल्यूशंस.
हु कैन यूज हैंड राइटिंग एनालिसिस? किसको कौन यूज कर सकते हैं? एनीबडी कैन यूज है. कहाँ कहाँ पर ये यूज होती है? ट्रेनर्स के लिए यूज होती है, मदर्स के लिए यूज होती है, बच्चों के लिए यूज होती है, कोई बीमार पर्सन है उसके लिए यूज होगी, कोई सेंसिटिव है उसके लिए यूज होगी, कोई भी XYZ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूज होगी, कोई रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए यूज होगी, कंपैटिबिलिटी मैच देख रहे हैं, कुंडली नहीं मिल रही है, ना मिले, अगर आपकी हैंडराइटिंग के ट्रेट्स मिल गए और वो कंपैटिबल हैं तो यहाँ पर ये 36 के 36 गुणों को फेल करता है. सो दिस इज द पावर ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस. फाइन. हैंडराइटिंग हमारी खुद की पहचान है. दिस इज इनर सेल्फ. दिस इज इनर सेल्फ. हमारे खुद के बारे में हमारी ब्रेन जो हमारे बारे में कहता है शायद वो हम खुद भी नहीं जानते होंगे, बट हमारी राइटिंग उसको पहचानती है. अब आप में से यहाँ पर एक क्वेश्चन था, व्हाई हैंडराइटिंग चेंजेस ऑल द टाइम? एवरी टाइम इट चेंजेस, एवरी टाइम इट चेंजेस. एक्चुअली हैंडराइटिंग के अंदर हैंडराइटिंग नहीं चेंज होती है. हैंडराइटिंग के जो बेसिक ट्रेट्स होते हैं वो वही रहते हैं. इट इज जस्ट एज पर आवर मूड्स. हम जब गुस्से में होते हैं हम कितनी तेजी से लिखते हैं. अगर आपको बोल दिया जाए कि एक कुछ लिख दो और यू आर एंग्री, आपको गुस्सा आ रहा है, तमतमाए हुए हो, कितनी जल्दी लिखोगे? वही आपको एक बोला जाए कि यू आर काम और आप एक ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आप यू आर वेरी हैप्पी, हाउ ब्यूटिफुली यू विल राइट, है ना? कितना सुंदर सुंदर लिखोगे. अगर आपको बोला जाए चलो एक किसी ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर लिख दो, यू विल राइट ब्यूटीफुली. अगर आपको बोला जाए कि ठीक है किसी गंदे से स्कोर कार्ड के ऊपर सिग्नेचर कर दो, कैसे आप गुस्से में साइन करोगे? लेकिन उसी जगह अगर आपको बोला जाए कुछ भी कंडीशन अगर ऐसी थी, एग्जामिनेशन में, एग्जाम है, एग्जाम में 3 घंटे का टाइम है, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने, कैसे फास्ट फास्ट स्पीड हो जाएगी? इट ऑल डिपेंड्स कि हैंडराइटिंग चेंज नहीं हो रही है. इट इज जस्ट कि हमारे मूड चेंजेस हो रहे हैं. और अगर फ्रीक्वेंट हैंडराइटिंग चेंज होती है तो दैट मीन्स हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है जिसको हम एक साथ करना चाह रहे हैं. कुड बी पॉसिबल हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं और उसको हम लिखने के लिए बेताब हो जाते हैं ना. इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो. डिक्टेशन जैसे चल रही होती है ना, माइंड में वो थॉट्स चल रहे हैं और उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज समथिंग, हैंडराइटिंग चेंजेस ऑल द टाइम. दैट्स द रीजन, देयर इज नो अदर रीजन. सिग्नेचर एनालिसिस डिफरेंट है क्या हैंडराइटिंग से? देखिए, सिग्नेचर एनालिसिस, हमारी हैंडराइटिंग एक मेन बॉडी है. हैंडराइटिंग मेन है, वो हमारी खुद की पर्सनालिटी है, वो हमने खुद लिखा है, खुद सीखा है. हैंडराइटिंग एक एक अक्षर बनाना, एक एक लेटर बनाना, वी हैव लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स. बट सिग्नेचर एज पर आवर नेम स्पेलिंग, एज पर आवर फैमिली नेम, हमने वो सिग्नेचर खुद से डिजाइन किया. व्हेन यू वर इन 9-10 स्टैंडर्ड वी स्टार्टेड डूइंग सिग्नेचर प्रैक्टिस. व्हाई वी डिड दैट? क्योंकि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर वो सिग्नेचर बनाने थे. और उस सिग्नेचर को बनाने के बाद हमारी लाइफ कैसे चेंज हो गई? एज पर आवर सिग्नेचर. जैसे सिग्नेचर बनाए उससे पहले हम बोलते थे यार मेरी लाइफ ना स्कूल टाइम तक बिल्कुल अच्छी थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ में. लेकिन उसके बाद तो जब एकेडमिक्स खत्म हुए, स्कूल खत्म हुई, तो कॉलेज लाइफ और ये वो, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई. I became different kind of person. Why is that so? क्योंकि सिग्नेचर हमारी पब्लिक पर्सनालिटी है. कॉन्शियसली राइटिंग हमारी सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न है. अननोन रीजंस की वजह से हमने वो राइटिंग बनाई, बट उसी में से सिलेक्शन करके कॉन्शियसली हमने कुछ कुछ स्ट्रोक्स को कलेक्ट किया और हमने अपने सिग्नेचर्स को फॉर्म कर दिया. तो जो वो सिग्नेचर बन के आए तो वो हमारी पब्लिक पर्सनालिटी, दैट इज आवर पर्सनल लोगो. आप सिग्नेचर अगर कर देते हो, कहीं पर भी अगर दे दिया, आपका चेक भी चला गया, तो यू नो कि वो सिग्नेचर उस पर्सन का है, क्लियर हो जाएगा. ये उसकी पर्सनल, आपका पर्सनल ब्रांड है, ये जो हर जगह मूव करता है. तो सिग्नेचर इज दैट, हैविंग दैट सिग्निफिकेंस कि जहां पर आप नहीं पहुंच सकते हो, आप अपने सिग्नेचर पहुंचा के आप अपने आप को वहां पे, अपनी प्रेजेंस को, तो दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी and vibration, nothing else. If I am here, you are seeing me, that means it is also creating some energy. If my words exist, अगर आप खाली मेरी आवाज भी सुन पा रहे हो, why is that so? Because of some frequency, कुछ चैनलाइज हो रही है ये. तो everything in this universe is energy, frequency and vibration, nothing else. किसी को भी हम देखते हैं और अचानक से वो पर्सन हमें पलट के वापस देख लेता है, तो what is that? That is also energy, frequency है, कुछ vibrations जा रही है. क्यों अट्रैक्शन हो जाता है, क्यों एक दूसरे के साथ लाइफ में लोग आगे बढ़ जाते हैं? वो इसी वजह से होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आप सेम पेस पर हो, तभी आप एक दूसरे के साथ सही तरीके से रह रहे हो. इट इज जस्ट कि किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज अगर नहीं है तो दैट मीन्स आपकी फाइन ट्यूनिंग थोड़ी सी वीक है वहां पर.
है ना, वहां पे अलाइन करना है उस फ्रीक्वेंसी को, दैट्स इट। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वहां की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी को अपने फाइन ट्यून करना है, सिंपल, नथिंग एल्स। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई और रूल नहीं है इसके अंदर। फाइन, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है? थम्स अप। जिनके कैमराज ऑन है मेरे को बस वही लोग दिखाई दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, आंसर मिल गया आपको आनंदिता जी? You Yep. got the answer? Got the answer. Thank you. Satisfied? Yes, very much. Great. Can Thank you so relate to it too. much. Thank you so much. अच्छा ठीक है, पीछे से किसी की सुरीली आवाज आई है। Oh, my child. ग्रेट। अभी हमारा ग्रिफोलॉजी का ना प्रोफेशनल कोर्स आने वाला है, और ये प्रोफेशनल कोर्स 20th Feb से शुरू है, बिकॉज इट इज कमिंग, और ये आज फ्री वर्कशॉप थी तो आई जस्ट थॉट कि चलो एक बार बता भी देते हैं, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। किसी को भी अगर इनके बारे में जानना होगा तो मे बी दीज आर द टॉपिक्स, कुछ बोनस पॉइंट्स भी हैं, मे बी वी कैन जस्ट डिस्कस इट लेटर। आज का जो हमारा मेन चीज है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। सेल्फ कास्टिगेशन, एक मिनट मैम, डू अ लिटिल फास्ट प्लीज, am I little slow? देखिए मेरा तो यही स्पीड है, सॉरी। आप अगर नहीं देखना चाहते तो मे बी आई कैन शेयर द लिंक, आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, बट मेरी यही स्पीड है। ठीक है, सेल्फ कास्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। सेल्फ कास्टिगेशन है क्या? टू पनिश योरसेल्फ, टू, एज आई मेंशन देयर आर सो मेनी डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जिनको हम जानते भी हैं, कई बार हम नहीं भी जानते हैं। इट इज जस्ट इस प्रोसेस के अंदर, इस ट्रेट के अंदर हम खुद को पनिश करते हैं। ये कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग है, और वो प्रोग्रामिंग कैसे बनी है? दिस प्रोग्रामिंग बिकेम बिकॉज ऑफ आवर अननोन रीजंस। ऑल राइट, ठीक है ममता जी, आई विल शेयर द लिंक, नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव मी द मैसेज, यू कैन शेयर द मैसेज, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर्सन कुछ नहीं करता, अपने आप को सफोकेट करता है। आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने आप को ऐसे करते हैं कि कई बार, जहां पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाइफ में कुछ बोलना है, कुछ करना है, लेकिन हम नहीं करते। अपने आप को पनिश करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को मार रहे हो, पीट रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। इट इज जस्ट कि यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग व्हाट यू वांट, और वो आपको कहीं ना कहीं सफोकेट कर रहा होता है। यू वांट समथिंग बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट। कुछ भी आपको रिस्ट्रिक्शंस हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब ये अननोन, ये अपने आप ही ये फैक्टर्स आपके साथ आते हैं। तो लेट मी सी इफ आई कुड जस्ट राइट हियर ऑन दिस स्क्रीन इटसेल्फ। तो ये ट्रेट हम आइडेंटिफाई करते कैसे हैं? ये ट्रेट हम आइडेंटिफाई करते हैं लेटर टी। हमारी राइटिंग में लेटर टी होता है, लेटर टी बना। अब जो हमारा क्रॉस बार होता है, नॉर्मली हम लोग अपना जो क्रॉस बार बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, सभी लोग ऐसे बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ कास्टिगेशन का जो ट्रेट रहता है, जिसके अंदर इनका जो ये होता है ना, नॉर्मली वी मेक इट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, प्लीज म्यूट कर लीजिए समवन, हाँ जी। नॉर्मली जो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, दिस वे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ कास्टिगेशन में दिस ट्रेट, दिस क्रॉस बार, दिस गोज राइट टू लेफ्ट, एंड दैट टू इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डैगर। खंजर होता है ना, खंजर, ये पॉइंटेड होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पर एक पॉइंटेड स्ट्रोक आ रहा है। पॉइंटेड स्ट्रोक कैसे होता है कि जब आप यहाँ से लिखते हो ना, उसके बाद यहाँ पर आते आते वो फेड होना शुरू हो जाता है, फेडेड। इसकी वजह से वो थिन हो जाता है, और वो थिन होने की वजह से इट्स लाइक पियर्सिंग समबडी। ये आप ऐसा मानो कि ये आप हो, आपकी बॉडी हो गई, ये आपके पाँव हो गए, ये हाथ हो गए, इसको ऐसा समझो कि दिस टी इज लाइक दिस। तो ये अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है तो किसको हर्ट कर रहा है? दिस इज यू। ग्राफोलॉजी में बहुत सारी चीजें रहती है जिसको हम पूरा डिटेल में जब स्टडी करते हैं वी अंडरस्टैंड बेटर थिंग्स, बट एक ट्रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज जस्ट कि आपके जो लेटर टी का क्रॉस बार होता है, इट गोज लेफ्ट, सॉरी, राइट टू
लेफ्ट, तब ये ट्रेट हमारे ऊपर काम करता है, तब ये ट्रेट करते हैं। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको करना कैसे होगा, आप कुछ भी लिखेंगे जिसके अंदर लेटर टी आता होगा और आप उसको विद स्पीड, फुल स्पीड से लिखेंगे एंड जस्ट चेक इट हाउ यू आर मेकिंग दिस टी क्रॉस बार, नॉट द टी स्टेम, इट इज जस्ट द क्रॉस बार, ठीक है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या चीज है? चाइल्डहुड ट्रॉमा अब हमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने याद होगा हमें, और कुछ ऐसा भी होगा कि जो नहीं याद होगा। अब अगर ऐसा होता है कि कुछ केसेस के अंदर बच्चे जब रोते हैं ना बचपन में, और वो मिल्क कंज्यूम नहीं कर रहे होते या कुछ मेडिसिन कंज्यूम नहीं कर रहे होते, तो कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स या मदर ऐसे हाथ को करते हैं जो बच्चा बहुत जोर से रोता है। तो वो भी कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि अगेन एंड अगेन रिपीटेडली उसके साथ ऐसी चीजें अगर होती हैं, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग दैट सेल्फ कास्टिगेशन, कि अगर मेरे साथ ऐसी कुछ होगी तो आई एम गोइंग टू क्रिएट, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ हर्ट। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद भी नहीं होती, बट सेलुलर लेवल पर एनीथिंग व्हिच इज बीइंग डन टू अस, हमें हमारी बॉडी, हमारे 5 सेंसेस उसको कैप्चर कर लेते हैं, और वो सेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हमारे डीएनए में मौजूद हो जाते हैं। अगर आप उसके लिए रिग्रेशन भी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, तो भी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट इज जस्ट वो हमारे ब्रेन के अंदर, वो हमारे ब्रेन वेव्स के अंदर, वो हमारी वाइब्रेशन के अंदर बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से वी डू दिस। सो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इट इज जस्ट सिंपल कि आपने अपने स्ट्रेट को वर्क करना होता है। आई थिंक एनोनेट हट गया मेरे आंसर, जस्ट तो इस ट्रेट को आपने करेक्ट करना है। अगर किसी की भी राइटिंग में इस तरीके का ट्रेट आता है तो आपको सिंपल करना है, अपने टी के अंदर आपने इसको प्रैक्टिस करके लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस बार को बनाना है, जस्ट दैट। अगर किसी की भी राइटिंग में अगर आपको मिलता है, अगर कोई बना हुआ लेटर आपके सामने है और आप उसको फिर देख रहे हैं, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट, आपके लिए वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन आपके सामने बनाता है, अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर आपको डाउट होता है, तो मे बी यू कैन जस्ट आस्क देम, गिव देम फ्यू लेटर्स टी से रिलेटेड, स्मॉल टी से रिलेटेड, एंड जस्ट आस्क देम टू मेक इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। अगर वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं तो उनको बोलो कि सिंपल आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे दिखा दो। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई द सेल्फ कास्टिगेशन ट्रेट। फाइन, क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट ट्रेट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ कंट्रोल। कितने लोगों को यहाँ पर लगता है कि सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेट है? चलिए, ये लगा अंशु, ओके, आपको लगता है ये सेल्फ कंट्रोल एक पॉजिटिव ट्रेट है, ठीक है। और किनको लगता है? सॉरी, हाँ यहाँ पे आनंदिता, पायल, ओके, आपको भी लगता है? नहीं, हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। और किसी को भी लगता है? आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, वी कंसीडर दैट एज अ पॉजिटिव ट्रेट, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार, व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेल्फ कंट्रोल। अब आपको लू जाना है अब आपको लू जाना है और आपके पास कहीं पर भी कोई वॉशरूम नहीं मिल रहा है। अब आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। इज दैट अ गुड कंट्रोल? दैट्स अ गुड कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर से कोई ऐसा इमोशन निकल के आया है जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे अभी रोना है या मुझे अभी चिल्लाना है, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, इज दैट अ गुड कंट्रोल? इज दैट अ गुड कंट्रोल? सिचुएशन देख के ऑफकोर्स हम लोग यही सोचते हैं कि ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे सब लोग, एवरीबडी इज हैप्पी, वी आर इन अ पार्टी, मैं कैसे रो सकती हूँ या मैं कैसे ऐसे चिल्ला सकती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल। हम सोचते हैं कि आई हैव अ वेरी गुड कंट्रोल, जैसे ही घर पहुंचे हम लोगों ने दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया, ये भी सेल्फ कंट्रोल है। बट इन एक्चुअल इज इट अ गुड कंट्रोल? इज इट अ गुड कंट्रोल? सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि हम ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम एक, आप ये सोचो कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, हम बच्चों जैसा भी रह सकते हैं, बट वी हैव ट्रेन्ड आवरसेल्फ इन सच अ वे दैट वी फील दैट वी आर सो कल्चर्ड कि हम वहां पर सेल्फ कंट्रोलिंग इज अ वेरी गुड थिंग। मैनरिज्म जिसको बोलते हैं ना, मैनरिज्म, कंट्रोलिंग एंड ऑल दोस फैक्टर्स, दीज आर वेरी गुड थिंग।
बट इन एक्चुअल हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब इसको लेता है ना, तो वो वहां पर उसको एज अ प्रॉब्लम ही डिटेक्ट करता है. हमें लगता है ये डिफेंस मैकेनिज्म है. सेल्फ कंट्रोल आया ही क्यों? उसका रीजन ये है कि ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है. हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में भी काम डाउन रहने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मुझे बहुत ज्यादा कोई ऐसा इमोशन दिखाना था जो हाई इंटेंसिटी का एक्शन था, हाई इंटेंसिटी का इमोशन था, लाइक एंगर, डरना या एक्साइटेड होना. कोई ऐसी न्यूज आ गई जिसकी वजह से मुझे एकदम डर लग रहा है, बट आई एम स्टिल कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि किसी और को पता ना चले वरना सब परेशान हो जाएंगे. तो ये अपने आप में एक डीपर डिजायर ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट है. ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में इम्प्रूवमेंट. और सेल्फ कंट्रोल जो है, तो वो सेल्फ कंट्रोलिंग फैक्टर आपके माइंड को एक ऐसे इम्पल्स क्रिएट करती है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा इमोशन जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोनल चेंजेस, इतना केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, केमिकल सिक्रीशन होता है जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम के ऊपर. फीमेल्स के साथ नॉर्मली जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इतने सारे होते हैं, व्हाई इज दैट हैपनिंग? इट इज जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट वी आर कंट्रोलिंग आवरसेल्फ, वी आर एंड इन फैक्ट हम इसको चीज को बोलते क्या है, हम कंट्रोलिंग नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं इट्स माई सेल्फ मैनेजमेंट, हाउ आई एम मैनेजिंग थिंग, हाउ efficient I am in managing my relationship very nicely. I am just a calmer person. I can handle every situation patiently. So this is the self control, and we just talk about this loud, in public, and we feel very proud on this, but in actual it is not. Be like a child, share your emotions when you feel that it is required. आप सबके सामने नहीं कर सकते, of course, थोड़ा अलग होके चले जाएं, but release it. कितने लोगों ने ये वाली स्टडी के बारे में सुना है कि एक रेस्टोरेंट में कहीं बाहर यूरोपियन कंट्री के अंदर एक प्लेट्स वाला सिस्टम बना हुआ है कि जो लोग फील करते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एंगर या कुछ गुस्सा भरा हुआ है, तो जस्ट गो ब्रेक दैट प्लेट एंड देन कम बैक एंड यू फील लाइट. हम ऐसा कुछ करते हैं? सेल्फ कंट्रोल, हम सोचते हैं कि नहीं, कंट्रोल है मेरे अंदर, तो कुछ भी ऐसा इमोशन नहीं है, आई डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ इमोशंस. वी फील इट. और किसी के सामने बताते हुए भी हम इस चीज को शर्म खाते हैं. हम ये सोचते हैं कि दिस इज ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल, किसी के सामने नहीं बोलना, वो भी सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. अच्छा, सेल्फ कंट्रोल का ट्रेट तो बताया नहीं. चलिए, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप में से टी बार के ऊपर ही आ जाइए. टी का जो बार होता है ना, ये थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप में होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है. किसी केस में ये बहुत ज्यादा डीपर हो सकता है. इट्स लाइक योर हैंड्स और वो डाउन है. सैड स्माइली देख रहे हैं? इट इज लाइक अ सैड स्माइली. सैड स्माइली ऐसी होती है ना, ऐसे. अब इसकी जगह आप ये मत कर देना, ये मत कर देना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो इट्स लाइक सिंपल स्ट्रेट रखने की कोशिश करें अपने टी क्रॉस बार को. तो क्रॉस बार अगर आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, बट इट इज कमिंग लाइक दिस, so that means it is a self controlling factor, and it is also requirement wherein you feel like that you need more improvements, कि मेरे अंदर थोड़ा कम self improvement है, self control है. मेरी आंटी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, she is able to control everything, वो हर चीज को कंट्रोल कर लेती है, but I am not able to, I have to be like that. तो ये भी एक डिजायर जब होती है ना कि सेल्फ कंट्रोल करना है, तो वो डिजायर सेल्फ एनहांसमेंट वाली जो टेक्निक रहती है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि सेल्फ इंप्रूवमेंट ड्राइव को शो करती है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. बहुत सारे लोगों को लगता होगा कॉन्शियसनेस, किसको लगता है? पार्टी में जा रहे हैं, ड्रेस पहन ली, फिर उसके बाद बोल रहे हैं मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, मैं ठीक तो लग रही हूँ, मेरा काजल ठीक लगा है, लाइनर ठीक लगा है, लिपस्टिक इधर से बाहर तो नहीं आ रही है, मेरे स्पेक्स मेरी ड्रेस के साथ जा रहे कि नहीं जा रहे. Such kind of things we ask, we confirm with others. ये क्या है? ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है. कहीं पर भी गए और आपने देखा कि भाई मैंने तो वेस्टर्न पहना और सब लोगों ने इंडो वेस्टर्न पहना है, मेरा तो कंप्लीट वेस्टर्न है और किसी का इंडो वेस्टर्न है, अब क्या वल्ले है, वॉशरूम में जाके अपने मेकअप को टचअप देना है. स्वेटिंग शुरू हो जाती है. ओ शिट, व्हाट आई हैव डन.
everybody is in Indo-Western, it's a bhajan sandhya and I'm in Western dress. What to do? कुछ नहीं कर सकते. Self consciousness, be like that only. कुछ नहीं कर सकते self consciousness है. तो ये है क्या? ये पर्सन को वरी बनाती है, वरी करती है अपने बारे में, कि दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं ना, बट इन एक्चुअल इसके पीछे है क्या? ये हमारे अंदर घुसता कैसे है? ये हमारे अंदर हमने ही घुसाया है और अननोन रीजंस की वजह से है. कुछ ऐसा नहीं है. कई बार ऐसे होता है कि हम कोई लिखा हुआ लेटर देखते हैं और अननोन रीजंस की वजह से हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. और कई बार ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ आवर डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, वी गेट दैट. तो यहाँ पर ये जो कॉन्शियसनेस आती है कि दूसरे लोग या सोशल सर्कल में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरी कैसी इमेज पहुंचेगी. आई एम कॉन्शियस. इफ आई एम स्माइलिंग, तो मेरी स्माइल कितनी है? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ब्रॉड है कि नहीं है? इस जगह पर मुझे इतना ही हंसना है, ज्यादा नहीं. बेटा ऐसे नहीं बैठते, थोड़ा आप कंट्रोल करके बैठो. गर्ल्स सिट लाइक दैट ओनली. अच्छा, जब आपने स्कर्ट पहनी होती तो ऐसे बैठो. तो these are something we are getting conscious, self consciousness being in yourself is always good thing. अपने आप में रहना एक अच्छी चीज है. सॉरी मेरे को किसी का कुछ मैसेजेस बाद में आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस वरी रहती है, एक चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बताएंगे. तो यहाँ पे ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर आता है. तो इसको हम देखते कैसे हैं अपनी राइटिंग के अंदर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. जस्ट ये हमारे लेटर, जब हमारा ये सेकंड हम फर्स्ट हम से बड़ा होता है, या हमारा जो लेटर एन होता है, जैसे सपोज करो कि हमारी राइटिंग में ओ लेटर है, ए लेटर है, टी लेटर है, कोई भी लेटर है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये यहाँ पर थोड़ा सा टुवर्ड्स द राइट साइड इफ इट इज गोइंग. तो ये हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस को दिखाता है. किसी भी तरीके से लोग बना सकते हैं, इस तरीके से हल्का सा भी होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. यहाँ से आप करेंगे ना तो ये पता चला, ओ इट इज जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंस, देन ऑल्सो इट इज शोइंग दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस. अगर किसी की राइटिंग में यहाँ पर आता हो तो आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज लिख सकते हैं. ठीक है, इसको करेक्ट करने का सही तरीका क्या है? सिंपल है, इक्वल होने चाहिए आपके हम. एम के ऊपर जो भी हम पे इक्वल. थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एवरी टाइम व्हेन यू मेक एनी अल्फाबेट तो उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट जस्ट ट्राई विद प्रैक्टिस, एनीथिंग कैन बी अचीव्ड. ठीक है, एनीथिंग कैन बी अचीव. आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं. अगर सेकंड हम थोड़ा सा डाउन आ जाए, इट्स ओके, चलेगा, बट उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. इससे थोड़ा सा छोटा चला जाए, मेरे हमेशा छोटे ही आ रहे हैं, तो इट्स ओके, चलेगा. ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला जो ट्रेट है, दिस इज आइडेंटिफाइड विद दिस. आई होप सबको क्लियर है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. सेल्फ डिसीट. खुद से कैसे कौन डिसीट करता है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है मेरे को, खुद से कैसे डिसीट करेंगे? अरे यार, यहाँ पर तो लिखा हुआ आ गया, ये मेरा शायद हुआ नहीं. चलो आई टेल यू. देखो, रियल सिचुएशन जो भी सामने आपके चल रहा है ना, अब सामने आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं. कल वैलेंटाइंस है ना, तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल लेते हैं. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है. बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने अल्कोहल लेना छोड़ दिया है, मैंने सिगरेट लेना छोड़ दिया है, मैंने बिकॉज ऑफ यू आई हैव जस्ट डन एवरीथिंग. एंड गर्ल इज लाइक वाओ, माय पार्टनर इज सो गुड, उसने तो मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है. बट व्हाट ही इज डूइंग आफ्टर लिविंग, अपने पार्टनर को छोड़ के जाता है एंड एक पैक करके आ जाता है, स्मोक करके आ जाता है, या अल्कोहल ले लिया. देन उसके बाद ये जस्ट टेकन इलायची ले लिया, कुछ भी ले लिया. बट आई एम इन दैट, थोड़ी सी स्मेल आ रही है, बोलते नहीं बेबी ऐसी ही आ रही होगी आपको, आई हैव नॉट टेकन दिस, मैंने तो लिया ही नहीं है, ऐसे ही लग रहा होगा, माय फ्रेंड वाज देयर, मैं तो लोगों के साथ खड़ा हुआ था, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग विद देम, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई हैड टेकन दैट स्वेयर ऑन यू, मैंने तो ये किया. तो दीज आर द एग्जांपल सेल्फ डिसीट. तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर होते हुए भी कंडीशन है, दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन, लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि आपके सामने कोई सिचुएशन, अगर आपको कोई
ऐसा कोई इंट्यूटिव एबिलिटीज आ रही है या इंट्यूशंस आ रही है, या आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू से इट इन लाउड, हम उसको बोल नहीं पाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं कि नहीं, बहुत बार पैसिफाई करती है ना मदर्स कि मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, मेरी बेटी तो ऐसी है ही नहीं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकती, मैंने तो उसको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं. इट्स नॉट अबाउट द संस्कार, इट इज सेल्फ डिसीटिंग. आप अपने आप को डिसीट करो. देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, हम किसी चीज को नजरअंदाज करना भी वो सेल्फ डिसीटिंग ट्रेट ही रहता है. और ये कंबाइंड ट्रेट्स रहते हैं. एक ट्रेट की स्टडी एक ट्रेट से ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये सेल्फ डिसीटिंग अपने आप को ये भी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है. अब आप ये समझ लो कि कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जहां पर आपको उस चीज को फेस करना ना पड़े, और उसको आप पैसिफाई करने के लिए आप उसके ऊपर कवर अप करते रहते हो. कोई भी ऐसी लाइफ में सिचुएशन हो रही है जिसको हम पहचानना नहीं चाह रहे, जो मेरे साथ सिचुएशन है, कोई आपको धोखा दे रहा है, बट स्टिल आई डू नॉट वांट टू लिसन अबाउट दैट पर्सन बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद दैट पर्सन, कि अगर उसके बारे में कोई मुझे ऐसा बोल भी रहा है तो इवन आई एम नॉट लिसनिंग, सॉरी. सो दिस इज समथिंग सेल्फ डिसीट. इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर? हमारा लेटर ओ, जिसके अंदर आपने देखा ये कैसे आया, सॉरी, ये इस तरीके से आता है. एनी लूप, दिस इज द लूप विच इज कमिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ओ, ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है. जितना बड़ा होगा डिसीट उतना ज्यादा है लाइफ के अंदर, वो पर्सन अपने आप में बहुत ज्यादा डिसीट करता है. जितना छोटा है तो कुड बी पॉसिबल 24 आवर्स में से 1 और 2 चीजों के बारे में डिसीटिंग रहती है. बाहर बारिश हो रही है बट स्टिल सेइंग नहीं हो रही, मैंने कह दिया ना बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है. सर इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं. हो सकता है आप लोग खुद भी आइडेंटिफाई करते हो. जिन लोगों की राइटिंग में ये अगर आ रहा है तो सेल्फ डिसीटिंग, सामने कोई चीज है लेकिन फिर भी उसको एक्नॉलेज नहीं करना, उसको किसी भी फियर की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम उसको डिनाई करते हैं. वी आर ऑलवेज इन द डिनायल मोड कि वो सिचुएशन जो भी अकर हो रही है वो सिचुएशन एक्चुअली है ही नहीं. तो ये हम ऐसा सोचते हैं. तो इसको सेल्फ डिसीट वाले ट्रेट को हटाने का इसको करेक्ट फॉर्मेशन इसका क्या है? सिंपल, जिस तरीके से हम लोग जीरोस बनाते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर से आप लेके आए, या फिर कोई भी कनेक्शन के अंदर अगर आपका लेटर आ रहा है तो अगर आप कनेक्शन में बनाते हैं तो उसको इस तरीके से लेके आए. कोशिश करें कि ये जो लूप है इसको अवॉइड करने की कोशिश करें. ये लूप नहीं आना चाहिए ओ लेटर के अंदर. लेटर ओ के अंदर ही ये खाली आइडेंटिफाई होता है. सो इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट दिस, दैट मीन्स यू आर सॉर्टेड, द ट्रेट हैज गॉन फॉर गुड. कई बार ऐसा होता है हमें इंट्यूटिव एबिलिटीज, इंट्यूशंस आ रहे होते हैं, बट स्टिल हम लोग सोचते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो वो भी सेल्फ डिसीट है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन के अंदर एक बैरियर लगा रहे हो. वो इंट्यूशन भी आप उस काम नहीं करता अगर आपके अंदर ये सेल्फ डिसीटिंग ट्रेट है. मैम आई हैव अ क्वेश्चन दैट, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, ओ जब हम बनाते हैं तो हम इसको, आप कह रहे हो कि ऐसे करके बनाते हैं, देयर इज अनदर वे ऑफ मेकिंग एन ओ व्हेन वी कट फ्रॉम बिटवीन, इज दैट राइट? ये वाला नहीं, ऐसे ऐसे नहीं जैसे आपने अभी, हाँ, उसके बाद बनाया. यस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. that's another नो, नॉट, that's another trait. ओके, ओके. There are so many. या फिर हम उसको ऊपर से, या जस्ट वांटेड टू नो. नहीं, आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है ना तो उसको सिंपल प्रैक्टिस करो कि इस तरीके से जो हम लोग ये वाला जीरोस, जो हम लोग 1000 के अंदर जीरोस वाली प्रैक्टिस करते थे ना बचपन में, this kind of zero practice you start doing it so that you can make your O's clean. ठीक है, उसको O को clean करने की कोशिश करो. So that is, you are going to eliminate the self deceiving trait from your writing and from your life also. I have one more question. How about if there is a loop on the top, not on the left hand side, it's on the top? I am not getting it. Top in the sense, just a moment. Matlab you're doing a O
and the loop is coming from the, yeah, a little bigger loop. This one. Yeah, correct. right. Yeah. चलिए, वैसे तो ये हमारे इस वाले Yes. वर्कशॉप में नहीं था, बट हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज द सीक्रेटिव लूप. Okay. Okay. ये अब किस किस को लूप बन रहा है, बस खाली इतना बता दो कि हाँ मैं कुछ कुछ बातें छिपाता हूँ. कितनी बातें छिपाता हूँ वो हम बाद में बताएंगे. देखो, इट इज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है कि अगर आप लूप नहीं बनाओगे तो आप कुछ छिपा नहीं सकते, आप सब कुछ सामने रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है. क्लीन होना इज बेटर, क्लीन होना इज बेटर. लेकिन अगर ये लूप किसी का आ रहा है तो दैट मीन्स ये आपके अंदर है. इसके साथ कुछ क्वालिटीज भी एडेड हैं. कुछ लोगों को बनाना भी चाहिए ये लूप, पर किसको बनाना चाहिए, किसको सीक्रेसी मेंटेन करनी है और किसको नहीं करनी. ठीक है, तो ये भी एक डिपेंड करता है. कंप्लीट स्टडी चेक करके, कंप्लीट हैंडराइटिंग चेक करके तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्रेट आपके लिए अच्छा है, ये ट्रेट आपके लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. मैम, लाइक हम मून लिख रहे हैं, अगर सपोज हम ये जैसे वो लिखते हैं और हम इसमें कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहे, ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं कर रहे और ऐसे ही लिख रहे MOON, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? देखिए, ये जो आप राइटिंग बोल रहे हैं ना, जो बिना ज्वाइन करे हुए आ रही है, दैट इज द प्रिंट स्क्रिप्ट. प्रिंट स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे वाले स्ट्रोक्स नहीं आते हैं क्योंकि वो हिडन लेवल पर चले जाते हैं. जो हिडन लेवल की ट्रेड्स जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते. दीज आर एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, बट वी आर नॉट शोइंग द रियल पिक्चर. तो प्रिंट स्क्रिप्ट में भी सीक्रेसी है. ओके. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. अब आप लोग आराम से क्वेश्चन आंसर पूछते रहिए. Ma'am, I have quite a few questions. The first thing is, in one of my nephew's school, they train the child irrespective of what standard they are. That is from the first standard to 10th. They train the child to write it in the Lucida script, which is the printed script. So that's a child to write. So everybody's writing is like print. Yes, it is in some schools, in fact, they are asking for this print script. We call it the print script because उनको टीचर्स को ऐसा लगता है कि शायद बच्चे को के हर एक अल्फाबेट को, हर एक लेटर को पढ़ने में उनको आसानी होगी, जिसकी वजह से उनका टाइम काफी सेव हो जाएगा. बट इन एक्चुअल यू आर जस्ट प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चे की लाइफ के साथ आप प्ले कर रहे हो, बिकॉज उसके काफी ऐसे ट्रेट्स जो कि हम हैंडराइटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो वहां पर आइडेंटिफाई नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसकी नर्चरिंग में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी. और ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है टीनेज चाइल्ड को हैंडल करने में. वहां पर वो काफी सीवियर ट्रॉमास के साथ, क्योंकि वो समझ नहीं पाते ना, तो ऐसे लोगों को फिर हम लोग किसके पास लेके जाते हैं? काउंसलर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, उनके पास लेके जाते हैं. फिर वो मेडिसिन वगैरह के ऊपर आ जाते हैं. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. एक्सप्रेशन नहीं है वो. Okay. So now the solution, I'm just asking you because this would be one of the best schools in that particular area. So they cannot shift the school. So in that case, what is it that we can do to the child? Because the child is very young. He's only in first standard. देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अकेडमिक्स में ना अभी उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में 11 years मोर उसने करना है. उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्हाट शी इज लर्निंग, इट इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंट एंड देयर इज नथिंग कैन बी डन एट द प्राइमरी लेवल. हम लोग उसको ये तो बोल सकते हैं कि मे बी यू कैन जस्ट टेक दिस. इवन कर्सिव राइटिंग आल्सो आई एम नॉट इन फेवर, बिकॉज कर्सिव राइटिंग इज आल्सो हैविंग सर्टेन ट्रेट्स, वेरी गुड ट्रेट्स, बट फ्यू ट्रेट्स दीज आर नॉट गुड. जैसे आपने कर्सिव में ये लूप आता है, तो दिस लूप इज नॉट गुड. यू हैव जस्ट अंडरस्टूड दिस. सो सिमिलरली देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गुड, व्हिच इज नॉट गुड. बट प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो बच्चे के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रिंट स्क्रिप्ट होते हुए भी कनेक्शंस के ऊपर लिखो, सो दैट, और ईदर यू वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग इन सच अ वे सो दैट योर राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल दैट टीचर विल नॉट ऑब्जेक्ट. क्लीन राइटिंग आप लिखो, बट स्पीड एक्वायर होना चाहिए. उसकी वजह से होता ये है कि जब आप कनेक्शंस लिखते हो ना, तो comparatively your speed become little slower. So that is also an issue. लेकिन स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस करी जाएगी उसकी, तो this can be done. Oh, so if you have cursive writing, the speed is actually lower, is it? नहीं. कर्सिव राइटिंग में क्योंकि आपको कनेक्शंस, देखिए अगर आप नैनो सेकेंड्स का टाइम भी अगर लेते हैं, इफ यू आर जस्ट काउंटिंग दोस नैनो सेकेंड्स, सो अल्टीमेटली इफ अ पर्सन हु इज कंप्लीटिंग 2 lines in 1 minute,
if a child is completing. In that case, there could be a possibility कि 2.25 seconds के अंदर दूसरा बच्चा सेम स्पीड से जो लिखता है, तो Okay. उसकी स्पीड में 10 seconds का फर्क आपको दिखे, जो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती. जब 20 बच्चों की या 30 बच्चों की जब क्लास होती है तो उसके अंदर इतना मैटर नहीं करता. Yes, I understand. I get the point. I have 3 more questions. Yes, yes. Now, the signature, what we do, that is something which is there in all the government documents also. We cannot change that. So even if we change our handwriting, when the signature is going to be still the same, how is it that it's going to impact on us? Doesn't matter. It doesn't matter at all, because the signature is something what you have created in all those documents. Either you are making once, twice, thrice, or maybe 10 times or 15 times in a month. But when you get the correct signature formation as per your, the graphotherapy, the writing, on the basis of that, when you start making those, that means you are just nullifying that energy which you have created. It is something, as I mentioned, everything is energy, frequency, and vibration. So if you want money, if you want good relationship, if you want health, if you want, peaceful mind, if you want mind, body, soul connection. So it's like just work on those aspects. Okay. It is just simple. Doesn't matter if you're doing it 2 times in a month. Doesn't matter at all. Even I have not changed my signatures in my banking. I have not changed. Okay. And one more question I have. You told in this castigation, you told something about the past life regressions. I actually didn't get that aspect. That is a process wherein a therapist, it is required under the under the examination, under the surveillance of under the proper, there is a proper procedure of taking a person into that trance, and with that trance we just break into that past life so that you actually see what exactly happened, whether you have taken any birth previously or not. So it's like past life regression. So there are so many things you can just search on YouTube. You will find ample of examples. So it is just past life. No, it is just the trigger point of your subconscious mind, because subconscious mind is something which is very powerful. It has all the information of your past, present, future. If you want, you can do the future regression too. You can see that how your future is going to be. You can always, on the basis of your present. But karmas are something what we are doing. कर्मास के बेसिस पर आप उसको सारी चीजें ऑल्टर कर सकते हो. जो हो गया वो हो गया. Which is coming, which is about to come, you can alter that. So past life is something, it is a regression process. Either it is going to be the past or the future. Present में भी होता है कि present में भी जब उस स्टेट में पर्सन होता है तो सबकॉन्शियस लेवल पर आप प्रेजेंट में जाके भी ट्रैवल करके देख सकते हो कि उस जगह पर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट व्हाट इज हैपनिंग. Okay. फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अंदर अभी भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये काम भी करते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर काफी काम है. यस प्लीज. थैंक यू वेरी मच. वेलकम जी. मोर क्वेश्चंस? So what is ahead of this now? Like after doing this session, is it like, I mean, do we have to go ahead and? Ma'am, it's all up to you. If you like that, if you want to proceed further, maybe there is a thing that if you want to go and if you want to just get yourself corrected, in that case, you can go for this handwriting and signature analysis session. And after getting that analysis, you can go for the therapy part, because analysis is something which can, a graphologist can analyze whether you have certain points which is positive or not positive. So identification is the first step. And once it has been identified, maybe the correction is the second step as per the person's handwriting. Or if this subject, really attract you, maybe you can just learn it. You become a graphologist, maybe you can just help others. It is just the next step. It's all up to you that how do you want to pursue. But yes, work on yourself. If anyone has, ma'am, are you done with this? I hope you got the answer. Yeah. Yes. So if we need to analyze our handwriting, we'll have to get in touch with you, basically. Yes, right? Yes. So, but the handwriting has to be consistent, right? So many times, like you said, I've seen, sometimes the handwriting is very neat, and sometimes it's like a scribble, which I don't like. So, so when someone asks me to write, I'll be writing it very neatly. So that may not reflect my,
I don't know. So what would be my? Don't worry about this. It is just you just write with your own pace. Doesn't matter whether you write fast or you write slow. For a graphologist, it is just the trait we study, and it does not change actually. As I had already given this example, that if you are in a writing, examination hall, and if you're writing in speed, then also it doesn't matter, because writing में क्या होता है कि examination के अंदर how you write, your words get stretched. You write like it's like a running horses in your script notebook के अंदर. But when you are calm, when you have ample of time, you do not think about anything and you just write patiently. But ultimately, the traits are still the same. Oh. Just your mind which travels, and because of the mind and the thoughts, because you are just trying to get that up. वो downloading चल रहा होता है ना, downloading, and you just need to write everything. So that way it works. It doesn't matter at all. And don't worry, whenever anybody comes for the analysis, we do not read the script. I have analyzed more than 2000 plus, उससे ज्यादा ही हो गए होंगे. I have never read. एक दो कुछ ऐसे होते हैं कि हमें read करने पड़ते हैं, because to understand the psychology, sometimes we had to. Otherwise, we do not read that. हाँ जी, शालिनी जी, just ask your question. हाँ जी मैम, थैंक यू फॉर द सेशन. मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इसमें, तो मतलब सब कुछ समझने का मन कर रहा था कि पूरा इसका डिटेल में जानूं. और मुझे सिर्फ यही पूछना है कि आपने एनालिसिस में जैसे 2-3 लेटर्स का बताया, O, M और T, तो सिर्फ हम उसी से एनालिसिस कर सकते हैं या और भी किसी चीज से हो सकता है? आपने सिर्फ 3 चीजें बताई ना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फ डिसीट. तो इसके अलावा और भी ट्रेट्स तो बहुत होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के. मैम बहुत सारे होते हैं. मेरा जो ये अपकमिंग वर्कशॉप है, इसके अंदर 300 प्लस ट्रेट्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. एक ही लेटर के जो 26 लेटर्स हैं, उसी में से हमारे बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनके मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं, और मल्टीपल वेरिएशंस के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. एक ही पर्सन के अंदर 100 ट्रेट्स होते हैं. तो उन ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब करेक्ट ट्रेट्स को हमने अपने अंदर इन्फ्यूज करना होता है. आप ऐसे बोल रहे कि उसको हमें करेक्ट ट्रेड्स की प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, और हम क्यों करे जा रहे हैं हमें ये भी नहीं पता. मूड की वजह से, अननोन रीजंस की वजह से, when we become conscious about those things and we actually practice for our good, तब जाके वो चीजें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करती हैं. if you're seeing me, I was not like that earlier. I was not like that. आप अगर 7 साल पहले मेरे से अगर मिले होते, अगर कोई आप में से कोई अगर मेरे को पहले से जानता है, तो I was my life was like बहुत ही प्रॉब्लम्स थी. रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब रिलेटेड इश्यूज, फैमिली इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी. एंड आई वाज लाइक अंडर सो मच ऑफ ट्रॉमा. लेकिन वो कैसे ओवरकम हुए, ये विजन बोर्ड इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड ऑन माय ओन. और वो विजन बोर्ड को करने से फिर आई अट्रैक्टेड ग्राफोलॉजी वर्कशॉप, एंड ग्राफोलॉजी जब आया मेरी लाइफ में, तो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड लिटरली वर्क टिल डेट. It's been so many years now, but still every day I'm just writing. I write every day. If you see this note, every day. It's my 1 hour daily practice. I call it my me time. Every day I work. I work on my signatures. I work on the writing part. I work on, there are graphotherapy patterns too. I work on those things. Everything I do. Means it's a long process to know everything in you can't explain it in one day, na? Yes, तो ये वर्कशॉप है, बट yes, there are people जो एनालिसिस राइटिंग करवाते हैं, तो go for the therapy part first, and therapy part is only for 25 days, जिसके अंदर वो मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं. तो that's another thing. अगर कोई एनालिसिस जो है वो कितने दिन में हो सकती है, अगर हम पूरी आधे घंटे में, हाफ एन आवर. अगर आप वर्कशॉप है, नहीं, उसका वर्कशॉप नहीं होता है. एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आई हैव अ फॉर्मेट, आई विल प्रोवाइड यू दैट फॉर्मेट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मेट यू नीड टू सेंड योर राइटिंग टू मी. आपकी जब राइटिंग मेरे पास आ जाती है, विल फिक्स अप अ मीटिंग, जूम अपॉइंटमेंट रहता है हमारा, उसके ऊपर आई जस्ट डू द एनालिसिस. तभी की तभी राइटिंग देख के आपका एनालिसिस करते हैं कि जो जो ट्रेट्स आपके आ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी पे कहाँ कहाँ वो मैच कर रहे हैं. एंड when you acknowledge कि yes, ये मेरी strength है, ये weaknesses, and if you want to go ahead with the weakness part that you want to improve, on the basis of that we work. So there are few more steps to it. We cover all those steps. Excuse me, Malvika. पेड होगा ना आपका ये सेशन? तो हाँ जी, वो सेशन तो पेड होगा जो एनालिसिस वाला है. yes. और Excuse me, ये Malvika. जो एनालिसिस है, इसके बारे में भी नहीं आपने कुछ बताया अभी.
आप मेरे से इसके लिए पर्सनल, या तो आप एक 2 मिनट रुक जाइए. एक्चुअली एनालिसिस अभी मेरा 14 फरवरी तक, आई एम जस्ट कंडक्टिंग दिस फ्री handwriting and signature analysis. If anybody is interested, they can just share, they can message me. I'll forward the format, and on the basis of that we can just fix up an appointment. Already मेरे पास free analysis है, तो hundreds of confirmations आ चुकी हैं, तो I'm already booked for another 15 days. But yes, अगर आपकी writing मेरे पास आ जाती है तो definitely will book an appointment as early as possible. व्हाट्सएप मैसेज करके आपसे फिर बात. हाँ जी बिल्कुल. थैंक यू. Welcome. Excuse me, मालविका. Yes ज्योति जी पूछिए. हाँ मालविका, मुझे सिर्फ ये पूछना है, जैसे आप विजन बोर्ड का बोल रहे हो, एंड प्लस जैसे कुछ कुछ मेरे भी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं जिनको मैं ओवरकम करना चाहती हूँ, एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन हेलो Yes please. हाँ, कितनी बार मुझे ऐसा लगता है आई एम गिविंग माय बेस्ट, बट स्टिल यू नो मैं कहाँ पे मैं गलत हो जाती हूँ कि मैं उनको ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ. तो इसके लिए मुझे क्या कोर्स या क्या चीज करनी पड़ेगी, कि मतलब राइटिंग का कोर्स करना पड़ेगा, या जो आप विजन बोर्ड का बोल रहे हो वो करना पड़ेगा, क्या चीज करनी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए देखिए विजन बोर्ड इज समथिंग डिफरेंट. विजन बोर्ड इज इट इज लाइक मैनिफेस्टिंग. देखिए मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में तब कब होती है जब हमारे सिग्नल्स प्रॉपर होते हैं. सिग्नल्स का मतलब है कि हमारा पैसेज, हमारे रिसीविंग मोड, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग एवरी वन ऑफ ईच वन ऑफ अस. आप ये समझिए कि हम यूनिवर्स की कठपुतली हैं, और हम कैसे कनेक्टेड हैं, हम एक थ्रेड से कनेक्टेड है. यहाँ से हम अपने दिमाग की वायर से, आपको इंट्यूशंस आते हैं, कैसे आते हैं, यू रिसीव सर्टेन थिंग्स. चक्रास का भी अगर आप लैंग्वेज देखते हैं तो हमारे सोल चक्रास और स्टार चक्रास हम कनेक्टेड होते हैं. तो व्हाट इज दैट? Actually, this is a higher level of energy with which we are connected. Everyone is connected. So when you are connected with all those kind of energies, with whom? With the divine energy, divine power. तो वहां पर वो सिग्नल अगर क्लियर नहीं है, तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन वाली पावर भी करोगे तो यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस नहीं जाएगा, है ना? ठीक है, तो फोकस जाने के लिए पहले तो वो कनेक्शन को इम्प्रूव करना है. वंस यू हैव अचीव दैट, एंड इट इज वेरी इजी, एनीवन कैन डू दैट. तो वो अगर आप अचीव कर लेते हो तो दैट मीन्स यू आर सॉर्टेड. यू कैन जस्ट लर्न इन नंबर ऑफ थिंग्स एंड यू कैन जस्ट गो फॉर दिस मैनिफेस्टेशन पावर. नहीं तो उसके लिए क्या करना है हमें, मतलब क्या चीज आपके अंदर, क्या चीज आएगी उसमें? मैम इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना हैंड राइटिंग और सिग्नेचर्स को आप यस, अगर आपने ऑलरेडी वो फॉर्मेट लिया हुआ है मेरे से, तो आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी राइटिंग मेरे को भेज सकते हैं, सो दैट आई विल फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट, फिक्स अप अ डेट टाइम, और उसके अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस करके देन हम लोग उसको प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि क्या होगा. What is apt for me, you will be telling me at that moment only. यस. देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने नंबर्स लिखे हैं, पर मेरे पास से वो नंबर आई मे नॉट बी एबल टू. अगर आप लोग चाहे तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं. दिस इज 9667561375. इस नंबर के ऊपर अगर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, ये मेरा मनका अकेडमी का ऑफिशियल नंबर है. इस नंबर के ऊपर अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे तो यू विल गेट दिस. आप वहां पर से फॉर्मेट ले सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको राइटिंग अपनी भेजनी है. आई विल ऑल्सो शेयर दिस स्क्रीन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यहाँ पर ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो आपके पास ये नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल चली जाएगी. आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, एंड आई विल शेयर. 14 फरवरी तक, 11 से लेके 14 फरवरी तक हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस इज फ्री फॉर एवरीवन. ठीक है, तो अगर कोई भी चाहे तो अपना एनालिसिस के लिए आप भेज सकते हैं. फाइन. किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. मैम यस प्लीज. आपका वो ग्राफोलॉजी का कोर्स वगैरह है क्या? यस, ग्राफोलॉजी का कोर्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 तारीख से शुरू हो रहा है. और 2 डेज अभी तक हम लोगों ने उसको 2 डेज इन अ वीक रखा है. मंडे एंड वेंसडे का क्लास है, 8 PM to 9:30, 1.5 घंटे का क्लास रहेगा. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन सच थिंग्स कि हमें कितना लंबा है, कितनी देर में खत्म करना है. 2 महीने भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है. आई जस्ट वांट टू गिव माय स्टूडेंट्स एज मच एज आई कैन. सो उसके लिए मेरी कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं रहती है. तो वैसे तो ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 आवर्स का रहता है विद केस स्टडीज, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ज्यादा भी चलेगा तो आई डोंट माइंड, और कुड बी पॉसिबल बिकॉज आई वाज आल्सो कंडक्टिंग दिस न्यूमरोलॉजी का कोर्स, बट आई एम
thinking to drop it because of my schedule itself. So maybe I'll extend the class. हो सकता है 3 भी कर सकते हैं या 4 भी कर सकते हैं in a week. ओके, तो सिग्नेचर एनालिसिस का कब रहेगा वो? इसी के साथ है हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस. I'll share the complete screen. आप उसको एक बार वो भी आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज. नहीं, वो बीइंग वुमन करके वो ग्रुप में आपका इंक्लूड है ना, उसमें आप भेज देंगे तो बेहतर होगा. देखिए वन्ना जी, प्रॉब्लम ये है कि वो किसी और वहीं से आपका मिला मुझे. हाँ मेरे को पता है, वो किसी और का ग्रुप है. सो आई डू नॉट अच्छा. कंफर्टेबल एट ऑल कि किसी और के ग्रुप में अपनी कोई भी वर्कशॉप या प्रमोशनल एक्टिविटी अगर डाली जाए. आप लोग मेरे इस वर्कशॉप में आए, वही मेरे लिए काफी है. तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बारे में देखिए, अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं आप में से कोई, तो सबसे पहले तो हैंड राइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस, ये दोनों चीजें जो है हमने कंबाइन करके ग्राफोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स बनाया है. दिस इज अ ग्राफोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स. It is this course, professional course, is not only for the person who wants to pursue it as a profession, but it is also for a person who wants to improve oneself. लेकिन इसके अंदर ग्राफोथेरेपी फिर भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ग्राफोथेरेपी इज अ डेडिकेटेड पार्ट वेयर आपको अपने स्ट्रोक्स को, अपने फॉर्मेशंस को करेक्ट करना होता है. वो आपके लिए पर्सनलाइज रहता है. इस कोर्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करना, जैसे आज हमने क्लास के अंदर 2 चीजें सीखी थी. एक तो पहले आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन सीखा था. तो जो थेरेपी पार्ट होता है, वो सोल्यूशन होता है, वो इस कोर्स के अंदर नहीं है. कुछ जगहों पर कुछ ट्रेट्स आपको मिलेंगे जो कि करेक्ट होंगे, तो वो आप कर सकते हैं. लेकिन इस कोर्स के अंदर हम आइडेंटिफाई करने वाले कि प्रॉब्लम्स क्या है. सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, साथ साथ भी कुछ मिलते रहते हैं, बट यस कंप्लीट नहीं रहते. इसके अलावा यहाँ पे कुछ बोनस टॉपिक को आई हैव एडेड, जिसके अंदर एज ऑफ ट्रॉमा, किसी भी पर्सन का एज ऑफ ट्रॉमा हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ की गाड़ी एकदम टर्न हो जाती है. तो वो एज ऑफ ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करना, अगर किसी ने अपनी लाइफ में सुसाइडल अटेम्प्ट अगर किए हैं तो उन अटेम्प्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर्जरी, जैसे हम लोग अभी फॉर्जरी के बारे में भी बात कर रहे थे, तो अगर बीइंग ग्राफोलॉजिस्ट, अगर आप एक सर्टिफाइड, अगर आप फॉरेंसिक हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो एक पूरा प्रॉपर एक मेथड है, उसके साथ आपको लैब सेटअप करना पड़ता है. अगर आप उस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में नहीं जाते, क्रिमिनोलॉजी में नहीं जाते, बट स्टिल यू वांट टू आइडेंटिफाई, सो यू कैन आल्सो डू दैट. एंड कुछ ग्राफोथेरेपी के पैटर्न्स, ग्राफोथेरेपी में हमारी कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं, कुछ पैटर्न्स भी होते हैं. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टीचिंग दोस लेटर्स, हम यहाँ पे पैटर्न्स बताते हैं. तो ये बोनस टॉपिक है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो हमारे ये है, सिग्नेचर एनालिसिस और हैंड राइटिंग एनालिसिस में लेवल 1, जिसको हम जिस्टॉर्ट मेथड बोलते हैं. मैक्रो एनालिसिस मतलब दूर से राइटिंग को देख के, बिना कोई भी लेटर को चेक किए हम उसको आइडेंटिफाई करना. लेवल 2 के अंदर ट्रेट मेथड, जो हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स के जो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं उनको स्टडी करना, उनका साइज देखना, वो किस तरीके से बने हुए हैं, उनका स्ट्रेच देखना, उनका स्क्वीज है कैसे हैं देखना. तो अप्रोक्सीमेटली 300+ ट्रेट्स हैं. फिर डिटेल में स्टडी करते हैं. लेटर टी की बहुत सारी वेरिएशंस होती है. लेटर टी हमारे विल पावर से, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल से, हमारे गोल से, लाइफ से डील करता है. लेटर टी को बताते हैं. लेटर आई है, या पर्सनल प्रोनाउन हमारा जो रहता है आई, लेटर आई, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो यहाँ पर इट इज अ डिटेल स्टडी. Excuse me, can you just include me in any WhatsApp group of yours? I can give the number in this chat so that I can come across for this course. Yes please. आप मेरे को या तो अपना नंबर, ठीक है, I'll try to store this information. आप मेरे को चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए. हाँ, चैट में डाल रही हूँ. Okay, thank you so much everyone. I'll stop the recording. If anybody wants to know anything else, just a minute.